हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम के एंड साइमल्टेनियसली आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर फॉर्मूला व्हिच आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू यू फॉर अप्लाइंग देम एज शॉर्टकट्स टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो सबसे पहले वी आर टेकिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज 25 ml of hydrogen and 18 ml of iodine vapors were heated in a sealed glass tube at 465 degrees centigrade and at equilibrium of 30.8 ml of HI was formed. तो इसमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोगों ने क्या करना होता है? Our first step is to write down the equation. So equation आपकी क्या है? H2 plus I2 to give us 2HI. ओके, सो इनिशियली ये x हो गया, ये x हो गया और ये क्या हो गया 0 और फाइनली ये हो जाएगा 2x। तो क्वेश्चन में आपको 2x की जो वैल्यू है वो दे रखी है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में 30.8 ml ऑफ HI जो है दैट इज फॉर्म्ड। सो इट वेरी क्लियरली इंडिकेट्स कि जो 2x है दैट इज इक्वल टू 30.8 ml। Therefore, x will be equal to 30.8 divided by 2, which is 15.4. तो वॉल्यूम ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम आ जाता है 25 से हमने स्टार्ट किया था, x की वैल्यू आ गई 15.4, so minus 15.4 which is equal to 9.6 ml. ओके, और उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं व्हिच विल बी इक्वल टू 18 माइनस 15.4 which is equal to 2.6 ml. So now you have volume of H2 and you have volume of I2. Now also according to the Avogadro's law, जो वॉल्यूम होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग वॉल्यूम को कंसिडर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट Kc? Kc जो है दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन concentration of H2 into concentration of I2, so putting the values 30.8 का whole square upon H2 is 9.6 into 2.6, on calculating this becomes equal to 38.0। ठीक है, अब अगर हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पे दैट इज 2HI to give us H2 plus I2, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग बोल रहे हैं let it be equal to x. So what is going to be Kc for the backward reaction? Kc backward reaction के लिए क्या हो जाएगा? That will be equal to Kc for the backward reaction that will be equal to what? One upon Kc. So that is 1 upon 38. Now Kc dash इस reaction के लिए that will be equal to x square upon 4 1 minus x square. ठीक है, तो आपको दिया हुआ है Kc dash की वैल्यू 1 upon 38. We can calculate the value of x from here. 1 upon 38 that will be equal to x square upon 4 1 minus x square. So carrying this forward from the previous sheet, तो ये आपके पास आ जाता है x की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे that will be equal to 0.245. That means कितनी परसेंटेज डिसोसिएशन हो गई? 24.5% डिसोसिएटेड। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2।
The equilibrium constant for the reaction A2 plus B2 to give 2AB at 100 degrees Celsius is 50. If 1 liter flask containing 1 mole of A2 is connected to 2 liter flask containing 2 moles of B2, how many moles of AB will be formed? Okay, so इस पे भी reaction आपको already दी हुई है. So let's try to work out A2 plus B2 to give us 2AB. ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? इसका 1 नंबर ऑफ मोल है, बी का 2 नंबर ऑफ मोल है और इसका 0 है. एंड एट इक्विलिब्रियम टोटल वॉल्यूम कितनी आ रही है? 3 लीटर्स. सो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 1 माइनस एक्स, ये आ गया 2 माइनस एक्स और ये कितना आ जाएगा? 2x. नाउ एज द टोटल वॉल्यूम इज 3, 2 प्लस 1 इज 3, तो वी विल डिवाइड इट by 3 to get the number of moles, 2 minus x and 2x upon 3. So these are going to be the concentrations. Now applying the law of mass action, what are we going to get? Kc is equal to concentration of AB whole square upon concentration of A2 into concentration of B2. ठीक है, putting the values over here, हमारे पास ये आ जाएगा 4x square upon 1 minus x. I've already discussed this in the previous lectures कि इसको हम कैसे derive करते हैं. 2 minus x. ठीक है. Now this is given to us in the question as 50. By doing this and applying the quadratic equation, हम लोग x की value calculate कर सकते हैं. तो x will get two values. Either it is 2.317 or it is going to be 0.934. Okay, now the value of x you know can never be more than 1. राइट. सो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 0.934. तो व्हाट आर गोइंग टू बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB? 2x, which is equal to 2 into 0.934, which becomes equal to 1.868. Okay, so let's move on to question number 3. For equilibrium AB, to give A plus B, Kp is equal to 4 times the total pressure. Calculate the number of moles. Okay, so यहाँ पे आपको दे रखा है Kp जो है that is equal to 4p. Right, अगर total number of total pressure हम लोग P atmosphere ले रहे हैं, so Kp की value is equal to 4p. Equation given to us is AB to give us A gaseous plus B gaseous. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ये आ गया, एक्स ये आ गया और एक्स ये आ गया. करेक्ट. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम? एन टोटल दैट विल बी इक्वल टू 1 minus x plus x, which becomes equal to 1 plus x. ठीक है. अब PA अगर पार्शियल प्रेशर है A का, तो PA की वैल्यू क्या आ जाएगी? PA विल बी इक्वल टू x upon total number of moles, which is 1 plus x into P. This is according to the Dalton's law of partial pressures. ठीक है. फिर उसके बाद इसी तरह से P of B क्या आ जाएगा? That will be equal to 1 upon 1 plus x into P total. और P of AB क्या आ जाएगा? Partial pressure of AB, that will be equal to 1 plus x upon 1 plus x into P. Okay, now applying the law of mass action, Kp की वैल्यू क्या आ गई guys? Pa into Pb upon P of AB. Put in the values of all which we have calculated over here, right? तो हमारे पास ये आ जाता है 4p is equal to x square upon 1 minus x square into p. ठीक है. सो x की वैल्यू जो है ऑन कैलकुलेटिंग, व्हाट विल वी गेट?
अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है कि 4p आ गया, तो अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ऑन कैलकुलेटिंग 2 upon under root of 5. So number of moles of A formed is 2 upon under root of 5 times initial moles of AB taken. This is an important question. Okay. Now I'm going to just show you a few tricks over here. जैसे कि हमको अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है फ्रॉम डेंसिटी मेजरमेंट्स, तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कैसे करेंगे? फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय अल्फा, ठीक है। अब अल्फा की जो वैल्यू होती है गाइस, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। सो व्हेन द वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कि जो सब्सटेंस है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वी आर टेकिंग ओवर हियर, लेट्स से वी आर टेकिंग अ रिएक्शन ए टू गिव अस एन ऑफ बी। सो इनिशियली ए है 1, ये है 0। एट इक्विलिब्रियम दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस अल्फा एंड दिस इज गोइंग टू बी एन अल्फा, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास ये आ गए। तो व्हाट आर गोइंग टू बी द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम? दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। सो इनिशियल वॉल्यूम जो है उसको हम लोग वी लिटर ले लेते हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम वॉल्यूम जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा इंटू वी, विच इज द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर डी जो है दैट इज द ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, और कैपिटल डी अगर हम लोग वेपर डेंसिटी लेते हैं व्हेन देयर इज नो डिसोसिएशन, तो हमारे पास दो यहाँ पे वैल्यूज आ जाती है। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट। तो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, वी आर सेइंग कि कैपिटल डी जो हमने लिया है दैट इज गोइंग टू बी द वेपर डेंसिटी व्हेन देयर इज नो डिसोसिएशन। तो डी क्या आ जाएगा? इट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी। और स्मॉल डी हम ले रहे हैं वेपर डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर when the degree of dissociation is alpha. So that d that will be equal to 1 upon 1 plus n minus 1 alpha into v. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमको अल्फा यहाँ से कैलकुलेट करना है बाय टेकिंग दीज टू इनटू कंसिडरेशन, तो हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू आ जाती है दैट इज डी माइनस डी अपॉन एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये हमारे पास कैसे आया? लेट्स से कि ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो यू हैव टू डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 टू कैलकुलेट अल्फा व्हिच इज डी माइनस डी अपॉन एन माइनस 1 डी। अगर हम लोग लेते हैं मॉलिक्यूलर मासेस, सो लेट्स से कैपिटल एम हम लोग ले रहे हैं इनिशियल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और स्मॉल हम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम। सो दिस इज व्हाट वी हैव टेकन। तो ये वाली इक्वेशन अब क्या बन जाएगी? Alpha will be equal to, okay then let's write it here only.
यहाँ पे इसको कंसिडर करके हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा विल बी इक्वल टू m माइनस स्मॉल m अपॉन n माइनस वन इंटू m। ठीक है, सो दिस इज हाउ डेंसिटी मेजरमेंट से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन यूजिंग प्रेशर टेम्परेचर डिटर्मिनेशन। ठीक है, सो इसमें अगर हम लोग एक गैशियस रिएक्शन ले ले, PCl5 gaseous to give us PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous, ये हमने ले ली। तो इनिशियली प्रेशर और टेम्परेचर जो है दैट इज P1 एंड T1, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड टेम्परेचर बन गया P2V2, सॉरी P2T2। ओके, और वॉल्यूम जो वेसल का है दैट इज कांस्टेंट, सो लेट्स से दैट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू V। अब इस रिएक्शन में इनिशियली लेट्स से PCl5 के A मोल्स हैं, इसके 0 हो गए और इसका 0 हो गया। ओके, व्हाट हैपेंस टू at equilibrium, what is going to happen? A minus AX, so this is going to be AX and this is going to be AX. So we have three conditions over here, right? Number of moles हम लेते हैं, two conditions in fact. So number of moles लेते हैं और volume लेते हैं, temperature लेते हैं और pressure लेते हैं. So number of moles, volume, temperature and pressure. Initially number of moles कितने थे? A, volume same रहेगी, temperature हो गया T1, pressure हो गया P1. ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे A प्लस AX, वॉल्यूम सेम रहेगी, टेम्परेचर हो गया T2 और प्रेशर हो गया T2, राइट। सो इनिशियल स्टेट में हमारे पास क्या आ रहा है, व्हेन वी आर गोइंग ऑन टू इनिशियल स्टेट ओवर हियर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो इनिशियल स्टेट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल स्टेट पे हमारे पास आ गया P1V इज इक्वल टू ART1 according to the ideal gas equation, PV is equal to nRT। ठीक है, सो P1 हो गया इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, A हो गया इनिशियल स्टेट पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T1 दैट इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर। नाउ व्हाट हैपेंस एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर हो जाता है P2, वॉल्यूम रहती है कांस्टेंट, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए A प्लस AX and R and temperature becomes T2. Okay, so let's say this is equation 1, this is equation 2. Now you have to divide equation 1 by equation 2. तो आपके पास V और V हो गया cancel, P1 upon P2 that is equal to P1 upon 1 plus X into T2। ठीक है, सो P1 की वैल्यू आपके पास P1 upon P2 that is equal to this। तो अगर हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो 1 plus X की वैल्यू क्या आ जाएगी, that will be equal to T1 P2 upon T2 P1। ठीक है, सो X you can calculate as T1 P2 minus T2 P1 upon T2 P1। तो इस तरह से हम लोग X की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसके साथ हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाता है खत्म। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आयनिक इक्विलिब्रियम इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल दैट टाइम जस्ट स्टे ट्यून्ड।